So yeah, we're gonna talk about the keratin treatment, but first let me thank you guys for all the love and support that you've been showing to this channel for the past couple of months. So we have finally hit 1000 subscribers on this channel and I can't even express how I feel right now. और मैंने कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई, man, this video is so unplanned. मैं यूजुअली लिख के रखता हूँ एक पेपर पे पेन से क्या क्या मुझे बोलना है और किस सीक्वेंस में बोलना है, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है भाई इस वीडियो के लिए, तो वीडियो के इस पार्ट के लिए तो भाई थैंक यू सो मच. 1000 सब्सक्राइबर्स really means a lot to me and this channel, because you see, the larger this channel grows, the more people can find it easily and they can benefit from this channel as well. So you guys have been suggesting me more interesting topics to make videos about, and I'd like to thank you for that as well. So all in all, thank you so much. I really love you guys. I really appreciate it all. And as a token of appreciation, I've started a Facebook group जहाँ पे हम सब लोग connected रह सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं. Of course, about long hair men and fashion, grooming, styling and all that stuff as well. एक दूसरे को advice दे सकते हैं, एक दूसरे से suggestions ले सकते हैं या दे सकते हैं, and everything. We can basically stay connected to each other. And if there's anything else that I can do for you guys, like a Q&A video or a live Q&A session on Instagram or something like that, where we can get to know each other better, just let me know in the comment section, guys. I would love to see your response on this question. Okay, so enough of that. I got carried away. Here's all the information that you may need about the keratin treatment. So no matter what treatment you're thinking of, अगर उसमें chemicals included हैं, then that is absolutely not good for your hair. So whether it be the keratin treatment or smoothing or straightening treatment, or no matter how expensive a treatment may be, if it contains chemicals, then that is not good for your hair. पर इस वीडियो में particularly keratin treatment के बारे में बात करेंगे, and we'll look at some things here. So first we'll look at what is keratin and what is actually keratin treatment. Then we'll look at how is it done, and then we'll see what are the consequences or disadvantages of a keratin treatment. And उसके बाद finally we'll decide क्या हमें keratin treatment करवाना चाहिए बालों में, और किसको सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, what are the long-term results of that treatment, and everything you need to know about that treatment. So before talking about keratin treatment, let's have a brief understanding of what is keratin itself. तो केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है और हमारे बाल मेजरली केराटिन से ही बने होते हैं. सो केराटिन एक्ट्स एज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, हमारे बालों को बाहरी पॉल्यूशन, सनलाइट एंड ऑल दी अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस से बचाने के लिए. और केराटिन बालों के अंदर भी प्रेजेंट होता है एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो जो भी केराटिन हमारे बालों में प्रेजेंट होता है नेचुरली, वो ओवर टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है ड्यू टू रीजंस लाइक ओवर वॉशिंग आवर हेयर और overexposing it to the sunlight and pollution and all the other environmental conditions that are not suited for our hair. तो जब हमारे बालों में से केराटिन खत्म हो जाता है तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, और उसके अलावा डल, डैमेज लगते हैं. तो ऑल इन ऑल अगर हमारे बालों में केराटिन की डेफिशिएंसी है तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे, डैमेज, ड्राई एंड ऑल दैट स्टफ. तो केराटिन होना हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब केराटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि हमारे बालों में केराटिन वापस डाल दिया जाता है. सो इट इज़ बेसिकली लाइक रीबिल्डिंग आवर हेयर. जो भी केराटिन निकल गया हमारे बालों से, एग्जॉस्ट हो गया, उसको वापस से बालों में डाल देना, राइट. तो जो भी हमारे बाल फ्रीजी हो गए या फिर ड्राई, डैमेज, डल हो रहे हैं, तो उन सब में अगर वापस हम लोग केराटिन डाल देंगे तो वापस से शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, एंड they'll look pretty good. But as I said, ऐसा कहते हैं, because you see, the chemical that is used in the keratin treatment is actually not keratin. Keratin की जो amount होती है उस chemical में वो actually बहुत ही कम होती है. That chemical is actually known as formaldehyde, and that chemical is a cancer causing agent, for your knowledge. ऐसा नहीं है कि keratin treatment करवा लिया तो कैंसर हो ही जाएगा, बस नॉलेज की बात है, पता होना चाहिए अगर तुम लोग करवाने की सोच रहे हो तो. पर फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर तुम लोग ग्लाइकोक्सिलिक एसिड से भी केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हो. आई थिंक इट इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव दैन फॉर्मल्डिहाइड, पर ठीक है, अगर तुम्हें कराना है तो why not spend a little more money, right? And another thing about the keratin treatment is that it is different from straightening or smoothing of hair.
उन ट्रीटमेंट्स में अलग केमिकल्स का यूज होता है जो एक्चुअली बालों के कोर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, पर केराटिन सिर्फ ऊपर क्यूटिकल्स वाले लेयर में अपना काम करता है, नॉट डीपर देन दैट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज केराटिन ट्रीटमेंट डन? So there is a step-by-step process of applying this treatment to your hair. तो सबसे पहले बालों को वॉश किया जाता है अच्छी तरह से थोड़े गर्म पानी से, जिससे कि बालों के सारे क्यूटिकल्स खुल जाएं और सारे वहाँ से जो भी डर्ट और ग्राइम वहाँ पे फंसा हुआ है वो निकल जाए। बेसिकली सब कुछ साफ करना है बालों को एकदम क्लीन, वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वॉश किया जाता है, कंडीशन नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कंडीशनर अप्लाई कर देंगे तो फिर जो भी पोर्स हैं बालों के, जो भी क्यूटिकल्स के बीच का एरिया है वहाँ पे कंडीशनर भर जाएगा, केराटिन कहाँ जाएगा। तो सिर्फ वॉश किया जाता है, कंडीशन नहीं किया जाता है बालों को। और स्टेप 2 में बालों को सुखाया जाता है ब्लो ड्रायर की मदद से, जिससे कि थोड़ा जल्दी सूख जाए। एयर ड्राई भी कर सकते हैं, पर ब्लो ड्रायर से थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे। अगर कोम की हेल्प से करेंगे तो थोड़े डिटैंगल भी हो जाएंगे एंड ऑल दैट, पर पूरा नहीं सुखाया जाता है। अराउंड 90% बालों को सुखा दिया जाता है, पूरा नहीं। तो बालों को थोड़ा सा डैम्प टाइप छोड़ दिया जाता है, पूरे नहीं सुखाते बालों को। और उसके बाद जो भी केमिकल है ट्रीटमेंट का, केराटिन क्रीम इज अप्लाइड टू द हेयर। सारे स्ट्रैंड्स पे धीरे धीरे करके पूरे स्ट्रैंड्स पे, पूरे हेड पे अप्लाई कर दिया जाता है। और फिर जब वो क्रीम पूरे बालों पे अप्लाई हो जाती है तो हेड को रैप कर देते हैं इंक्लूडिंग दी हेयर इन अ फॉइल पेपर और समथिंग लाइक दैट, और उसे छोड़ देते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स टू लेट द प्रोडक्ट गेट इन दी हेड, सिट देयर, और उसको अपना काम करने के लिए। और कुछ घंटे बाद जब वो प्रोडक्ट लगभग ड्राई हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली ड्राई हो नहीं सकता क्योंकि वो रैप्ड है, हवा लगी नहीं रही है, तो जब वो लगभग ड्राई हो जाता है तो एक स्ट्रेटनिंग आयरन की मदद से उसको लॉक कर देते हैं, वहाँ पे गर्म करके बालों के अंदर लॉक कर देते हैं उस केमिकल को, जिससे कि वो वहीं पर रहे। अगर तुम वॉश करोगे तो वो निकलेगा नहीं। सो क्विक नोट हियर, जो स्मोक तुम लोग देखते हो जब उसको स्ट्रेट कर रहे होते हैं केराटिन केमिकल को, वो स्मोक एक्चुअली बालों के जलने का स्मोक नहीं है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट के जलने का स्मोक है। दैट इज नॉट एक्चुअली डैमेजिंग आवर हेयर, क्योंकि बालों के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत थिक कोट होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट जलता है, नॉट आवर एक्चुअल हेयर। दैट इज नॉट डैमेजिंग योर हेयर, ओके। And after that the chemical is left to set on your hair for a day or two before it is washed out of your hair. और उसके बाद you are basically done. Okay, so that was how the treatment is executed. Now moving on to the consequences or disadvantages of keratin treatment. Okay, so number 1, it is a chemical based process. और chemical based कुछ भी अच्छा नहीं है, बालों के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। I mean, you're applying some synthetic chemical on your hair. कैसे अच्छा हो सकता है बालों के लिए? तो केमिकल हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई बालों को अच्छा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे लगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग में अच्छे लगेंगे ही, पर इन द लॉन्ग रन आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बेनिफिट आवर हेयर। ओके, सो नंबर 2, वी हैव गॉट टू टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ आवर हेयर। देखो, तुम्हें पता है केराटिन ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है, तो तुम्हें अपने बालों की और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल वैसे ही सिल्की स्मूथ स्ट्रेट रहें तो। क्योंकि अगर तुमने केयर नहीं करी बालों की, अगर तुम गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, सही से उनको नहीं रख रहे हो बालों को, तो वो 3 महीने भी नहीं चलने वाला। अगर तुम सही से रखोगे बालों को तब जाके वो 3 to 6 मंथ्स चल सकता है। अगर जैसे तुम्हें अपने बालों को वॉश भी करना पड़ेगा किसी सल्फेट फ्री शैम्पू से, अगर सल्फेट वाले शैम्पू से किया तो बहुत जल्दी निकल जाएगा केराटिन वहाँ से, क्योंकि बाहर से हमने उसको अप्लाई किया हुआ है यूजिंग हीट, वो भी टेम्परेरीली। तो अगर तुम लोग उसको सही से नहीं रखोगे तो वो भी बहुत जल्दी हट जाएगा, क्योंकि वो हमारा नेचुरल केराटिन नहीं है जो बालों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो हट जाएगा बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है केराटिन ट्रीटमेंट की, तब जाके वो कहीं 3 to 6 मंथ्स चलता है। एंड नंबर 3, इट इज़ टेम्परेरी। तुमने करा लिया, अच्छे से केयर भी करी, उसके बाद भी वो हद से 5 महीने चला, लाइक रियली मैन, 5 महीने बाद तुम्हें फिर जाके कराना पड़ेगा। No man, I don't like that. And number 4, जब वो बालों में से हट जाएगा पूरी तरह, तब वो तुम्हें दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हट चुका होगा ना बालों में से, तब तुम्हारे बाल नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रिजी ड्राई टाइप लगेंगे तुम्हें अपने बाल, क्योंकि केराटिन तो वहाँ से हट चुका और जो ओरिजिनल केराटिन था उसको भी साथ में लेके गया तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे बाल लॉन्ग टर्म में। अगर तुम बार बार करवा सकते हो ट्रीटमेंट तो ठीक है, करवा लो, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भाई। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट बिट, शुड यू ऑप्ट फॉर द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कराने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें दिमाग में रखना। पहली चीज़,
जितने ज़्यादा तुम्हारे बाल डैमेज हैं उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर किसी के बाल डैमेज ही नहीं है इन दी फर्स्ट प्लेस तो केराटिन करवाने के बाद भी क्या फ़ायदा, अगर वो डैमेज है नहीं तो वैसे ही रहेंगे। और इन दी एंड जब वो हट जाएगा केराटिन वहाँ से आफ्टर 4-5 मंथ्स, तो उसके बाद बिना काम वो बाल डैमेज हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारे बाल डैमेज नहीं है तो तुम केराटिन मत करवाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेटनिंग योर हेयर। अगर तुम्हें अपने बाल स्ट्रेट करवाने हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट लो भाई, केराटिन इज अ डिफरेंट थिंग विच इज द सेम एज द सेकंड पॉइंट, केराटिन इज नॉट गोइंग टू मेक योर हेयर स्ट्रेट। अगर बहुत ज़्यादा कर्ली किसी के बाल हैं तो वो वेवी हो सकते हैं, अगर वेवी हैं तो स्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगा तो हो जाएंगे मेरे बाल स्ट्रेट, क्योंकि क्यूटिकल्स के बीच में केराटिन भर गया तो वो बैंड नहीं हो सकते ऑब्वियसली। बाकी अगर तुम सिर्फ इसलिए केराटिन करवा रहे हो क्योंकि तुम्हें स्ट्रेट बाल चाहिए तो भाई स्ट्रेटनिंग ही करवाओ, स्मूथनिंग ही करवाओ, केराटिन इज अ डिफरेंट थिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू कीप इन माइंड इज दैट इट्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट इज नॉट गुड। अगर तुम बार बार करवा सकते हो रिपीट केराटिन को तो ठीक है, अगर तुम्हें एक ही बार करवाना है तो भाई मत करवाओ, और लंबे बाल हैं या कर रहे हो तो भाई अभी से मत करवाओ बिल्कुल भी, आई डू नॉट recommend it. And now we're pretty much done with the keratin treatment. Just always keep in mind chemicals are not good for your hair. And with that being said, I'll catch you in the next one.